Hello, welcome students to the new class of vectors, and we are on the lecture vectors lecture 5, and in today's lecture we will cover that is properties of vector addition and subtraction of vectors. In the last class we have covered with vector addition. We have seen triangular law, parallelogram law and analytical method to solve add two vectors. We have derived the formula of resultant vector, that is resultant vector magnitude is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and similarly the angle tan alpha का formula we have seen, ठीक है. And we have done some special cases when the angle between the vector is 0 degree, 90 degree, 180 degree, and similarly we have done a special case when the magnitude of both the vectors are same. Then what will be the resultant? If magnitude of both the vectors are same and the angle between them is 0 degree, let's say magnitude is f, then the resultant vector is having magnitude of 2f. And if angle is 180 degree, they are acting in the opposite directions. F and f are acting in the opposite direction, that is angle is 180 degree, then the resultant is 0. And when angle between them both is 90 degree, then f and f is having angle 90 degree, then the resultant vector magnitude is root 2 of f. So students, we have completed with the vector addition, right? So in this class we will do some questions solving of vector addition, and then we will see the properties of vector addition and how to subtract two vectors and what is the practical application where we subtract the two vectors, right? So students, in the last class we have seen the formula of vector addition, okay? So I will request or I will ask you both to the students to solve these questions, okay? So once you have solved these questions, both the questions, okay, then you start the video and see the video lecture solution. So over here in the first question they are saying the two forces each of 4 Newton act on a body at an angle of 60 degree. Find the magnitude and the direction of resultant force acting on a body. So over here we are having two forces of equal magnitude. Let's say the magnitude of forces is, let's say, F1 and second force is also F2, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, let's say it is equals to F. तो इनका मैग्नीट्यूड F के इक्वल है और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, that is 60 डिग्री का एंगल है. तो let's say ये पहली फोर्स F1 लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड है और ये दूसरी फोर्स है इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, F. This is F1 and this is F2 और both का magnitude F है and the angle between the vectors is 60 degree. I know if I want to find out the resultant, तो resultant का formula क्या है, that is resultant, that is F net will be equals to under root of magnitude of F1 का whole square plus magnitude of F2 vector का whole square. तो इसके ऊपर आप वेक्टर लगा लीजिए, right? 2 magnitude of F1 vector into magnitude of F2 vector into cos of theta, and over here theta is 60 degree. So if I will put F1 as F1 square, that is F square, मैंने F1 और F2 की वैल्यू को F पुट कर रहा हूं into 2 F into F will be F square into cos of 60 degree. Cos 60 degree is half, so it is multiplied by half. So over here I will see 2 के साथ 2 cancel हो जाएगा. I will get that is f square plus f square plus f square. I will get 3f squares, right? तो अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, it will come out to be equals to root 3 of, या आप इसको ऐसे देख सकते हो f square, और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा it will be root 3 of f. अब बेटा मेरे को दिया हुआ है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन. बेसिकली ये f की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये f 4 की इक्वल है. देखो मैंने पहले 4 की वैल्यू को यहाँ पर पुट नहीं किया, मैंने स्क्वायर नहीं किया 4 को, राइट? तो अब मेरे को पता है f की वैल्यू 4 है, तो रिजल्टेंट 4 न्यूटन है. आई नो दैट इट इज 4 न्यूटन. तो अब बेटा मेरे पास यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ जाएगी, दैट इज f नेट विल बी इक्वल्स टू, दैट इज f की वैल्यू कितनी है 4 root 3 Newton. So this will be my answer. नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास.
तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। अभी मेरे पास डायरेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अब देखो बेटा, आप वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम अगर आप कंप्लीट करोगे, राइट, तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट इनके बीच में कुछ आएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था आपके पास, अगर आपको सभी बच्चों को ध्यान हो, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू दैट इज b sin थीटा, या मैं ये यहां पर कह सकता हूं दैट इज f2 sin थीटा, f2 वेक्टर का sin थीटा अपॉन f1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस f2 cos ऑफ थीटा। तो यहां से बेटा अगर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो f2 की वैल्यू भी f है, इट इज f। मैं अभी वैल्यू 4 नहीं पुट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड नहीं पुट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड में एंड स्टेप के अंदर पुट करूंगा, राइट, इनटू साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय f प्लस f cos ऑफ 60 डिग्री। इफ आई विल सॉल्व इट ओवर हियर तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज √3/2 होल डिवाइडेड बाय दैट इज f प्लस f cos 60 डिग्री इज हाफ, तो इट इज हाफ। तो अगर बेटा मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो इट इज √3f/2 होल डिवाइडेड बाय, अगर यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये 2f प्लस f 3f/2 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अगर मैं बेटा ध्यान से देखूंगा यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी √3f डिवाइडेड बाय 3f, राइट। तो यहां से बेटा अगर मैं सॉल्व करूंगा f के साथ f कैंसिल हो जाएगा, √3 के साथ नीचे एक √3 आ जाएगा, तो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब आप सभी बच्चों को पता है कि tan अल्फा की कौन से एंगल पर वैल्यू 1/√3 होती है, तो आई नो दैट सर अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। सो दिस इज माय रिजल्ट ऑफ डायरेक्शन। तो मेरे पास डायरेक्शन आ गई, यानी कि अगर ये f1 है तो f1 के साथ कितने एंगल पर आ रहा है रिजल्टेंट, दैट इज 30 डिग्री के एंगल पर आ रहा है। और आप बेटा वैसे भी देख सकते हो कि यहां पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल, तो जो सा रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली इनके बीच में ही आएगा, है ना। यू कैन वेरी क्लियरली सी कि जो सा रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज f नेट। तो अगर ये f है और ये f है तो यहां पर ये एंगल बेटा अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, 30 डिग्री के साथ है। तो टोटल एंगल 60 डिग्री। आप वैसे भी देख सकते हो कि ये इक्वल है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से बाइसेक्ट करके जाएगा। ये जो सा f नेट है यानी कि ये 60 डिग्री को बाइसेक्ट करके जाएगा, तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो या ग्राफिकली भी देख सकते हो, और अगर आपको सॉल्व भी करके देखना है तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, राइट। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए। तो वंस यू हैव नोटेड इट डाउन देन वी विल कम इनटू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहे हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, यानी कि अभी वो किसकी बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट की बात कर रहा है। कहता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मैंने मान लिया कि लेट से पहला वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड a है, ठीक है, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, और ये दोनों इक्वल हैं, और लेट से इनकी वैल्यू है इक्वल्स टू, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू x है, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया, ये मैंने लेट किया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो सा a और b का रिजल्टेंट आएगा ना, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, वो भी कितना आ रहा है, वो कहते हैं कि x ही आ रहा है। देखो if the resultant of two vectors of equal magnitude, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, दैट इज x, और ये किसकी बात कर रहा है, रिजल्टेंट की, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। कहते हैं जो सा रिजल्टेंट आ रहा है वो इनके आइदर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आ रहा है। तो यानी कि अगर a भी x है, b भी x है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी x है, और वो कह रहे हैं कि कौन से एंगल पर, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तो यानी कि वो बोल रहे हैं कि a और b के बीच में कितना एंगल हो, ठीक है, या
जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, ठीक है। इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है। वो कहते हैं इसके बीच में कितना एंगल हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, ताकि जो से इनका रिजल्टेंट है वो भी एक्स के इक्वल ही आ जाए, ठीक है। मेरे को पता है दिस इज आल्सो इक्वल्स टू एक्स एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू एक्स, तो मेरे को रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, एक्स ही चाहिए। और इस क्वेश्चन के अंदर मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, जहां पर इनका रिजल्टेंट का वैल्यू भी एक्स ही आएगा, ठीक है। डन। तो अब मेरे को क्या पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एक्स है, तो अब मेरे को एक चीज फॉर्मूला पता है, दैट इज सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो यहां से बेटा अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो आई नो दैट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, मेरे को x चाहिए, तो x विल बी अंडर रूट ऑफ a का मैग्नीट्यूड भी x है, b का मैग्नीट्यूड भी x है, प्लस 2 ऑफ x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब फर्दर बेटा अगर मैं इस चीज को सॉल्व आउट करता हूं तो स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ये ऐड करके 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा के इक्वल आता है, राइट। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, इन दोनों टर्म्स को ऐड अप कर दिया और इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अगर बेटा मैं यहां से देखूंगा तो यहां से इन दोनों टर्म से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, राइट। तो यहां से x स्क्वायर के साथ ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये 1 आ जाएगा, तो अगर इसमें 2 को नीचे लेकर आऊंगा तो ये 2 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, राइट। देन फर्दर अगर मैं बेटा सॉल्विंग कर रहा हूं तो अगर मैं cos थीटा इधर ही रखता हूं तो इस 1 को उधर ले जाता हूं, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस हाफ। देखो मैं इसको यहां से उधर ले गया हूं, राइट। तो अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, cos theta will be equals to that is minus half। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि cos के कौन से एंगल पर वैल्यू माइनस हाफ आती है, ठीक है। और अगर आप बेटा देखोगे सबसे पहले तो आपको cos थीटा का ग्राफ पता होना चाहिए, मैंने पीछे भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको cos थीटा का ग्राफ ड्रॉ करवाया है, ठीक है। तो जो सा cos थीटा का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे करके होता है, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। दिस इज 90, ठीक है, एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 180, ठीक है, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 360 डिग्री। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं थीटा रख रहा हूं और यहाँ पर मैं y एक्सिस के अंदर cos थीटा है मेरे पास। तो सबसे पहले 0 और 90 के बीच में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव हुई नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 और -1 के बीच में कब आती है, दैट इज 90 और 180 के बीच में। ये देखो ये ग्राफ जा रहा है नीचे को, ठीक है, और 180 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ये भी मैंने आप सभी को बताया हुआ है, राइट। तो इसकी वैल्यू कौन सी बेटा आती है, हाफ आती है, ठीक है, दैट इज 120 डिग्री पर आती है। तो 120 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, दैट इज माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। तो ये टी रेशियोज के अंदर भी आप प्रूव कर सकते हो, दैट इज cos ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था टी रेशियोज का। तो cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है, एट थीटा इक्वल्स टू, सो हमारे पास थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, दिस इज अवर आंसर। तो अब बेटा आप सब बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वंस यू हैव डन विद दिस, ठीक है, तो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट कि ये 120 डिग्री जो से हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। तो अब हम कुछ रिजल्ट्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये भी उनके बीच में से एक रिजल्ट आया है हमारे पास जिसको हमारे को याद रखना है, ठीक है। और वो रिजल्ट क्या है, दैट इज अगर दो फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, अगर दो फोर्सेस हैं F और F, ठीक है, ये भी F है
या एफ एफ नहीं बोलते, हम एक्स एक्स बोल देते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एक्स लिया था दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये भी फोर्स एक्स है, फोर्स बोल दो या कुछ भी बोल दो, वेक्टर क्वांटिटी है एक्स है, ठीक है, और इनके बीच में ये एंगल कितना है 120 डिग्री का, ठीक है, थीटा इज 120 डिग्री एंड इफ द थीटा इज 120 डिग्री तो इनका जो सा रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आएगा और इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, दैट इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल ही आएगा। और यहां पर ये जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा कितना आएगा, दैट इज ये अल्फा, सॉरी दिस अल्फा इज 60 डिग्री, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ इस 120 डिग्री के एंगल को ये रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमारे को ये पता चला कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और 120 डिग्री के एंगल पर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स हैं ऐसे और ऐसे, अभी यहां पर ये भी x है और ये भी x है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, यानी कि थीटा इज 90 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इनके बीच में आएगा ऐसे करके, ठीक है, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू √2 ऑफ x। इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना, यहां पर x है और यहां पर कितना आएगा √2x आएगा, और यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री के एंगल है, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री आएगी। देन सिमिलरली अगर बेटा आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक x इधर को लग रहा है और दूसरा x इधर को लग रहा है, अभी यहां पर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, दिस एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये एंगल 180 डिग्री का है यानी कि थीटा इज 180 डिग्री, तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज 0। यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √2x, और यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू x, राइट। नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये जो सा वेक्टर बना, ये नल वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, नल वेक्टर इज जिसका मैग्नीट्यूड इज 0, दिस इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0। तो अभी हम इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे इफ यू विल गेट अ टाइम, राइट। एंड सिमिलरली बेटा नेक्स्ट केसेस, अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, ये भी x है ये भी x है, ठीक है, तो इनका जो सा रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट का यहां पर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा इज 0 डिग्री, तो यहां पर बेटा जो सा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, दैट इज 2x। ये भी देखो ये भी देखो है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज 2x मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका नेट डायरेक्शन कौन सा होगा, ठीक है, तो इसका नेट डायरेक्शन भी यही होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका डबल। तो ये देखो मैंने डायरेक्शन को शो कर दिया, यहां पर ये, यहां पर तो 0 ही है, यहां पर ये आ गया डायरेक्शन और यहां पर ये डायरेक्शन आ रहा है एग्जैक्टली बीच में। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने ये वाले क्वेश्चन को प्रूफ किया है, ठीक है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और मैं यहां पर बल्ब को बना देता हूं, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यू सॉल्व, ठीक है, आई विल पुट सम क्वेश्चंस टू यू ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो आप वेक्टर एडिशन की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड विद सम क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर एडिशन, नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो राइट इट डाउन। Note it down students. हाँ जी students, write down the next two questions, question number 3 and question number 4, ठीक है, and solve these questions, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हैव द रिजल्टेंट 10 न्यूटन। मैं बोल देता हूं कि लेट से मैं लेट कर देता हूं, एक मेरे पास A फोर्स है और एक मेरे पास B फोर्स है, और वो बोल रहे हैं कि अगर A फोर्स और B फोर्स, ठीक है, मैं एक फोर्स का मैग्नीट्यूड A लेट कर लेता हूं और दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड
बी लेट कर लेता हूं, और वो कहते हैं कि फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि थीटा की वैल्यू वो कितना बोल रहा है, 180 डिग्री बोल रहा है, और वो कहता है कि उसका रिजल्टेंट जो सा आता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। एंड सिमिलरली इफ दे एक्ट एट द राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि अगर ए और बी फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर लगते हैं, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो वो कहता है कि रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का जो सा मैग्नीट्यूड आता है दैट इज 50 न्यूटन। तो फाइंड द टू फोर्सेस, और हमारे को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी से मेरे से क्या पूछा गया है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मेरे से पूछा गया है, और दूसरा मेरे से क्या पूछा गया है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, ट्राई द क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशंस को बनाओ, सॉल्व करो और गेट द आंसर। हाँ जी बेटा, तो अब थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको केसेस बताए थे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 10, तो मेरे को पता है अगर एंगल 180 डिग्री का हो तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, दैट इज a माइनस बी। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव कर चुके हैं स्पेशल केस के अंदर, इफ थीटा इज 180 डिग्री तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और 10 इक्वल टू a माइनस b आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो cos 90 डिग्री आ जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, दैट इज दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज 50। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज 50 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब बेटा हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सॉल्विंग किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स हैं। तो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम ओवर हियर, दैट इज a इज इक्वल टू 10 प्लस b, और 10 प्लस b जो वैल्यू आई उस a की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो ये 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दैट इज 50 का होल स्क्वायर, राइट, और दैट इज 10 प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर दिया n प्लस b स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर अकेला b रह गया, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अकेला b रह गया। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, तो अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक आपके पास b की वैल्यू -40 आएगी और एक b की वैल्यू 30 न्यूटन आएगी। तो अब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास b का जो सा रिजल्ट है दैट इज 30 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जब मैं आप इस b की वैल्यू को बैक इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो a की वैल्यू सॉल्व करके मेरे पास कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन आ जाएगी। तो अब मेरे पास दोनों मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे को a और b का मैग्नीट्यूड चाहिए था, ठीक है, और a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, दैट इज 40 न्यूटन, और b का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, दैट इज 30 न्यूटन। अब आप देख सकते हो अगर a और b 40 इधर और 30 पीछे को लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 10। सिमिलरली 40 इधर को लग रहा है और 30 ऊपर को लग रहा है, तो आप इसका रिजल्टेंट अगर आप वहां से सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 50। सो माय आंसर इज 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन को, and if once you have solved noted down with this solution, come to the question number 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो हमारे को क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज 3p and 2p is r। यानी कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 3p है, a की वैल्यू है 3p और b की वैल्यू है 2p, और वो कहते हैं कि इनका रिजल्टेंट कितना आता है, r आता है। हमारे को इनके बीच में एंगल नहीं दिया हुआ, और वो बोलते हैं सेकंड केस के अंदर बोलते थे इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड। फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड मतलब अगर ये 3p है, अब ये कितना लगने लग गया, 6p, देन द रिजल्टेंट इज आल्सो डबल्ड। यानी कि हमने उसके एंगल की उसके बीच में कोई बात नहीं की, यानी कि एंगल तो वही का वही लग रहा है, ठीक है। और वो कहता है कि रिजल्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है, कि अगर ये r लग रहा था तो अगर फर्स्ट फोर्स को मैं डबल कर देता हूं तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी डबल हो जाती है। तो हमारे को एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा मैं लेट कर लेता हूं कि लेट से हमारे पास ये 3p है, दिस इज 3p, तो केस 1 दिस इज 3p एंड दिस इज 2p। 3p और 2p के बीच में कितना एंगल है, मैं लेट कर लेता हूं इनके बीच में एंगल है दैट इज थीटा। अब वो कहते हैं कि अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है r। तो ये फर्स्ट केस है हमारे पास।
और दूसरे केस के अंदर वो क्या कहते हैं कि अगर मैं इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, अच्छा 3p का डबल कितना होगा, दैट इज 6p। अब वो कहते हैं ये 6p है और इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो 2p का 2p ही है, ठीक है। और इसके बीच में उन्होंने एंगल को भी चेंज नहीं किया, तो एंगल इनके बीच में कितना है, थीटा। अब वो कहते हैं कि अगर मैं इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो इसके रिजल्टेंट का जो सा मैग्नीट्यूड आता है दैट इज डबल, दैट इज अगर ये पहले r आ रहा था तो अब ये कितना आ रहा है, 2r आ रहा है, ठीक है। और आपको वो क्वेश्चन में क्या चीज फाइंड आउट करने को बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल थीटा की वैल्यू को हमारे को फाइंड आउट करना है। तो सभी बच्चे फिर से दोबारा से दो इक्वेशंस को बनाइए, दो इक्वेशंस को बना के सॉल्व कीजिए और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा मैंने आपको बोला था कि हाँ भी हमारे पास दो केसेस हैं, 3p और 2p, और इनका रिजल्टेंट r है और इनके बीच में एंगल थीटा है, और फिर जब डबल कर दिया तो ये 6p हो गया, तो इनके बीच में एंगल थीटा है और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2r आया। तो बेटा हमने पहले केस के अकॉर्डिंग दैट इज रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के अकॉर्डिंग हमने a और b की वैल्यू को, a की वैल्यू को 3p और b की वैल्यू को 2p पुट कर दिया। तो सॉल्व करके r स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास बन गई, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos थीटा, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। आफ्टर दिस सेकंड इक्वेशन के अंदर दैट इज, सॉरी अब यहाँ पर मैंने a स्क्वायर, तो यहाँ पर ये रूट हट जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने रूट का स्क्वायर कर दिया ना, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो इसका रूट हट गया, है ना। तो अब बेटा यहां पर हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डबल हो गया था, दैट इज 2r का होल स्क्वायर, और a का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया दैट इज 6p का होल स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर, b वैसे का वैसे ही है, 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहां से मेरे पास ये पर्टिकुलर चीज बन गई, दैट इज 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 40p स्क्वायर प्लस 20p स्क्वायर cos थीटा। अब बेसिकली मैं इन दोनों टर्म्स के अंदर r, p और cos थीटा अननोन थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी r स्क्वायर था, तो मैं यहाँ पर भी r स्क्वायर लेकर आने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अगले इक्वेशन के अंदर इनको इक्वेट कर दूं। तो अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो ये 10p स्क्वायर आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो ये दिस इज 6p स्क्वायर cos थीटा आ जाएगा। तो अभी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। तो अब मेरे को यहाँ पर r स्क्वायर को एलिमिनेट करना था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ इक्वेट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos थीटा इक्वल आ गया किसके, इस पर्टिकुलर टर्म के इक्वल आ गया, दैट इज 10p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर cos थीटा। यहां से बेसिकली p स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहां से भी p स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अभी मैंने चलो आगे जाके कैंसिल आउट किया उसको, ठीक है। तो ये मैं 13p, ये 10 को इधर ले आया और इस 12 को उधर ले गया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो दिस विल बी 3p स्क्वायर, और इस चीज को सॉल्व करके आएगा -6p स्क्वायर cos थीटा आएगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट हमारे पास ये 3 2s हो जाएगा और p स्क्वायर के साथ p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैंने p स्क्वायर को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 120 डिग्री। आई नो दैट cos 120 डिग्री इज -1/2, so my answer is 120 degree. So everybody of you can pause the video and write down this solution, right? हाँ जी बेटा, तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 4 फोर्सेज हैं, 4 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। द फर्स्ट फोर्स इज 200 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ, पहली फोर्स 200 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में लग रही है। सेकंड इज 100 न्यूटन एक्टिंग साउथ। थर्ड फोर्स इज 500 न्यूटन एक्टिंग ईस्ट, तो 500 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है। एंड द फोर्थ फोर्स इज 300 न्यूटन एक्टिंग वेस्ट। What is the magnitude and the direction of the resultant force? तो यहां पर बेटा हमने लेट कर ली, डायरेक्शंस को लेट किया, तो मैंने इस डायरेक्शन को नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट बोल दिया। दिस इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर ही मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन को लिया, ठीक है। तो अब एक पार्टिकल के ऊपर 4 फोर्सेज लग रही हैं, तो मैंने अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन उनके मैग्नीट्यूड को लिख दिया और डायरेक्शन को एरो से शो कर दिया, राइट। तो आप देख सकते हो ये पार्टिकल है, नॉर्थ डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है 200 न्यूटन और साउथ डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। सिमिलरली 500 न्यूटन राइट डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है, और 300 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में लग रही है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज नेट मैग्नीट्यूड।
अच्छा, नेट नेट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि इन चारों फोर्सेस की का जो सा नेट रिजल्टेंट आ रहा है, यानी कि इन चारों की बजाय मैं एक फोर्स लगाऊं जो इन चारों का काम कर दे। चाहे आप वैसे सोच लो या आप ऐसे कह सकते हो कि इनका नेट मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। तो अब देखो बेटा, लेट से मैं इस फोर्स को बोल देता हूं, लेट से दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड दिस इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। दिस इज सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या आप इसको F1 F2 F3 फोर्सेस भी बोल सकते हो। चाहे चलो आप A1 A मत बोलो, इसको आप F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड बोल दो, इसको आप F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड बोल दो, इसको आप F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड बोल दो, ठीक है, और इसको आप F4 मैग्नीट्यूड का फोर्स बोल दो। देन अब आपके पास जो सा बेटा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, दैट इज F नेट, आपको जो सा निकालना है, ठीक है। आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो सा आएगा दैट विल बी F1 वेक्टर को आपको ऐड करना है, F2 वेक्टर को ऐड करना है, F3 वेक्टर को ऐड करना है और F4 वेक्टर को ऐड करना है। यानी कि अब आपको इन चार वेक्टर का एडिशन करना है, राइट। तो अब बेटा देखो, कभी भी आपको अगर मैं स्केलर एडिशन की बात करूं, अगर मैं स्केलर एडिशन में आपको बात करूं, मैं आपको बोलूं कि भैया आपको क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने कि आप 40 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 70 करो, ठीक है। तो दिस इज योर नेट रिजल्ट, दैट इज लेट्स से x, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना तो आप क्या करते हो, आप स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हो, ठीक है। ये आपको मैं स्केलर एडिशन की बात कर रहा हूं कि बेसिकली आप स्केलरली कैसे ऐड करते हो, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, पहले आप इकट्ठे ऐड करने के बजाय, अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, ठीक है, तो आप इकट्ठे ऐड करने के बजाय आप क्या करते हो, पहले इन दो नंबर्स को ऐड कर देते हो। तो आप लिख देते हो सर x इज इक्वल टू दैट इज 40 प्लस 10 दैट इज 50 प्लस 30 प्लस 70। अभी आपने क्या किया, दो नंबर्स का एडिशन किया, ठीक है, बट आपने नेट रिजल्ट नहीं लिखा। आपने पहले इन दोनों को ऐड करके तो ये बना दिया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने 50 और 30 को ऐड कर दिया। फिर जब आपने 50 और 30 को ऐड किया, आपने बोला 50 60 70 80, दैट इज सर 80 प्लस 70। अभी भी आपने दो नंबर्स को ऐड करके तो ये रिजल्ट बन गया। फिर आपने बात क्या किया, आपने 80 और 70 को ऐड कर दिया, और 80 और 70 को जब आपने ऐड किया, 80 90 100 10 20 30 40 50, दैट इज 150। तो यहां पर भी आपके पास नेट रिजल्ट आ गया। तो आपने क्या किया, दो दो नंबर्स को करके ऐड किया और आपने आपके पास नेट रिजल्ट आ गया। यानी कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना आता है स्केलर के अंदर भी, ठीक है। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F1 और F2 की रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे को ध्यान से देखेंगे। तो अब बेटा यहां पर, ठीक है, आपको चार फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। अब चार वेक्टर्स को इकट्ठे आपको सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है। तो अब हम क्या उठाएंगे, पहले हम F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि यहां पर F1 और F2 इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है। मेरे को पता है कि सर F1 और F2 के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, क्योंकि अगर ये ऊपर को लग रहा है, ये नीचे को लग रहा है, राइट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट F1 और F2 का रिजल्टेंट नेट किधर को आएगा, ऊपर को आएगा या नीचे को आएगा। अब आप बोलोगे सर देखो, ऊपर को 200 लग रहा है और नीचे को 100 लग रहा है, ऊपर 200 लग रहा है और नीचे 100 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितनी आएगी, ऊपर को आएगी। और मेरे को पता है कि इन दोनों का जो सा रिजल्टेंट आएगा दैट इज F1 माइनस F2, और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, नॉर्थ। तो लेट से मैं इसको बोल देता हूं R1 वेक्टर। तो यानी कि जो सा R1 वेक्टर है वो किसके इक्वल है, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, F1 माइनस F2 के इक्वल है, और उसका डायरेक्शन क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। तो बेटा ये देखो 200 माइनस 100 करूंगा तो ये ऊपर को फोर्स आ जाएगी कितनी, दैट इज सर 100 न्यूटन, और ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, और इसका डायरेक्शन मैंने मार्क कर ही दिया, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, दैट इज R1 वेक्टर का R1 वेक्टर आ गया। और अब मैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देता हूं इंडिविजुअली, F3 और F4 को ऐड कर देता हूं, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दैट इज सर F नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया, हमने यहां पर दो को ऐड करके यहां पर R1 वेक्टर बना दिया। अब
F3 और F4 का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। अब आप देखो F3 इधर को लग रहा है 500 और F2 इधर को लग रहा है कितना 300। अब यहां पर भी F3 और F4 के बीच में एंगल कितना है, यहां पर भी ये एंगल कितना है 180 डिग्री का। ये देखो ये टोटल एंगल F3 और F4। अभी मैं इसका लेना देना कुछ नहीं है, अभी मैं सिर्फ F3 और F4 को सॉल्व कर रहा हूं। तो बड़ा कौन सा है, अब मेरे को पता है कि यहां पर इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूं कि सर इन दोनों का जो सा रिजल्टेंट है दैट इज सर R2 वेक्टर, और R2 वेक्टर किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू सर F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये अभी यहां पर भी मैग्नीट्यूड्स थे राइट, तो F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस F4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अभी मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं, डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर रहा हूं, डायरेक्शन में बाद में फाइंड आउट करूंगा। डायरेक्शन तो मैंने लिख ही दी है, इन दोनों का डायरेक्शन नेट नॉर्थ आ गया, और इन दोनों का डायरेक्शन कितना आएगा, दैट इज R2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 500 माइनस 300 दैट इज 200। और इसका नेट डायरेक्शन क्या आएगा, आप देख सकते हो 500 ज्यादा इधर को है और ये इधर को कम है ना, तो नेट कितना आ जाएगा, दैट इज 500 माइनस 300 200 न्यूटन कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भैया इन दोनों का जो सा रिजल्टेंट है वो कितना आ गया, दैट इज मैग्नीट्यूड उसका कितना आया, दैट इज 200, और कौन सी डायरेक्शन में आया, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में। ये मैंने R2 वेक्टर को लिख दिया। ठीक है, तो ये मैं मैग्नीट्यूड की यहां पर बात कर रहा हूं, R1 और R2 के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन को तो मैंने पॉइंट आउट कर ही दिया, लिख ही दिया कैसे आई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, दैट इज R2 है ना, F3 और F4 का रिजल्टेंट कितना आ गया R2। तो अब मेरे पास F नेट किसके इक्वल आ गया, दैट इज सर F नेट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो यानी पहले इंडिविजुअली मैंने F1 और F2 वेक्टर को ऐड किया, फिर F3 और F4 वेक्टर को ऐड किया, R2 आ गया। अब मैं R1 और R2 का रिजल्टेंट निकालूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। अब R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, इट इज वेरी क्लियरली सीन कि सर R1 और R2 के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, और F नेट वेक्टर R1 प्लस R2 वेक्टर करना है, और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। एंड आई नो दैट कि सर F नेट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी मेरे पास, दैट इज सर F नेट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू दैट इज अंडर रूट ऑफ, अगर ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, दैट इज R1 का होल स्क्वायर, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से बेटा अगर मैं F नेट को सॉल्व करूंगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू दैट इज 100 का होल स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर, दैट इज 100 होल स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो यानी कि बेसिकली 100 कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा ना तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 100 के स्क्वायर का रूट करूंगा तो वो 100 ही आएगा बाहर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, दैट इज 5, दैट इज 100 रूट 5 न्यूटन। दिस इज द F नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी मैंने डायरेक्शन ही फाइंड आउट की, ये 100 न्यूटन इसका नेट, 100 रूट 5 न्यूटन इसका नेट मैग्नीट्यूड आ गया 4 फोर्सेस का। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा यहां पर आपके पास इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ठीक है, विद डायरेक्शन 200 आ गया था और कौन सी डायरेक्शन में आया था, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया था, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 100 आ गया था, कौन सी डायरेक्शन में आया था, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया था, राइट। तो मैंने इन दोनों को मार्क कर दिया विद डायरेक्शन, राइट। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, मैं जितने भी ऑपरेशंस कर रहा हूं वेक्टर्स के ऊपर विद डायरेक्शन एंड विद मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो अब बेटा यहां पर आपके पास ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल है तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो मेरे को पता है, अगर एंगल 90 डिग्री का हो तो ये रिजल्टेंट फॉर्मूले का मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आ गया, दैट इज 100 रूट 5, और आप रूट 5 की वैल्यू को पुट करके, ठीक है, जो भी आती है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपके पास वो नेट फोर्स आ जाएगी। यानी कि इन सभी फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड आएगा। और अगर आपको उसका डायरेक्शन निकालना है, अब आपको पता है इन दोनों का डायरेक्शन ईस्ट आ गया और इन दोनों का डायरेक्शन नेट नॉर्थ आ गया, ठीक है। तो अब आपको इसका भी मैंने रिजल्टेंट के डायरेक्शन का भी फॉर्मूला बताया हुआ, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू f1 ओवर f2। तो यहां पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो
तो दिस इज 0.5 और tan अल्फा की वैल्यू 0.5 आ गई, राइट। तो यहां से बेटा अल्फा किसके इक्वल आ गया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 0.5। अब आपको tan इनवर्स ऑफ 0.5 नहीं पता कितना होता है, ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो आपको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू 26 डिग्री आएगी। तो यानी कि ये पर्टिकुलर फोर्स है, ये कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज दिस एंगल इज 26 डिग्री एंड 34 मिनट्स। तो ये भी एक एंगल का यूनिट है, वी हैव स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल, 1 डिग्री को फर्दर 60 मिनट्स के अंदर होता है, ये 34 मिनट्स है, यानी कि टोटल 26 डिग्री एंड 34 मिनट्स इसका एंगल आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट। तो अब आपने नेट डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया और नेट मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया, सो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस चीज को सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, राइट। तो नोट डाउन। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा आप सभी बच्चे आगे 2 नोट लिखिए, 2 नोट्स बनाइए, ठीक है। तो पहला नोट क्या है, द 3 वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 मस्ट बी कोप्लेनर। बेटा सबसे पहले देखो, ये अब 3D के अंदर हम बात कर रहे हैं, राइट। अब जैसे हमारे पास बेटा वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर्स, देखो प्लेन क्या चीज होती है, प्लेन इज दिस बोर्ड इज अ प्लेन, राइट। ये एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो लेट्स से फोर्सेस इस प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं, दोज आर कोप्लेनर फोर्सेस। जो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं फोर्सेस, दोज आर कोप्लेनर। फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल बेटा देखिए, ये मैंने आपके पास ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन मार्कर, ठीक है। तो यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दिस इज एक्स वाई प्लेन। यानी कि कोई भी फोर्स जो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही है, वो ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, यानी कि वो प्लेन किसके अंदर लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। सिमिलरली अगर मैं फ्लोर की बात करूं, दिस इज फ्लोर, दिस ब्लैक मार्कर एंड ग्रीन मार्कर, दिस इज एक्स जेड प्लेन। तो ये एक स्ट्रेट जो सा एक सरफेस बन रहा है, दिस इज एक्स जेड प्लेन। सिमिलरली ये जो सा प्लेन बन रहा है, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, दिस इज वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो कोई भी फोर्स जो वाई जेड प्लेन के अंदर लाई करेगी, दैट इज लाइज इन द वाई जेड प्लेन, राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि द रिजल्टेंट, द 3 वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 मस्ट बी कोप्लेनर। देखो अब मैं बोलता हूं कि कोई 2 फोर्सेस हैं, वो बोर्ड के प्लेन के अंदर लाई कर रही है, लेट्स से इस बोर्ड का ये भी एक प्लेन ही है ना, तो मैं बोलता हूं कि एक ए फोर्स है, एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट किसके प्लेन में आएगा, जैसे कि ए और बी के प्लेन के अंदर, ए और बी का प्लेन ये बोर्ड का प्लेन ही है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा कुछ इसी, अच्छा वो किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा, बोर्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका आया, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया। अब अगर मेरे को एक थर्ड वेक्टर चाहिए, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, कि अगर मेरे को एक थर्ड वेक्टर चाहिए, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ताकि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर को जब मैं ऐड करूं, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट 0 आ जाए, ठीक है। तो यानी कि नेट वेक्टर इज नल वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड 0 है। तो अब एक सिंपल सी बात है, अगर ए और बी को ऐड करके रिजल्टेंट ये आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सा सी वेक्टर है वो एग्जैक्टली रिजल्टेंट वेक्टर के ऑपोजिट में ही लगना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, तभी देखो ए और बी का रिजल्टेंट आया ये, ठीक है, और रिजल्टेंट और सी आपस में ऑपोजिट, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही सी का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो अगर जो सर ये सी वेक्टर है, रिजल्टेंट ए और बी के रिजल्टेंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट लग रहा है, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर ए और बी के एग्जैक्टली ऑपोजिट लग रहा है इसके रिजल्टेंट के, तो मैं ये कह सकता हूं ए बी और सी आपस में एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना। तो यानी कि वो यही नोट में बोल रहा था, 3 वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0, जैसे ए बी और सी का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो ये पक्की बात है ए बी और सी एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब आप मान लीजिए कि अगर लेट्स से मैं बोलता हूं ए और बी, लेट्स से ए और बी का रिजल्टेंट इसमें इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। आप मान लो कि भैया कि जो सा ये रिजल्टेंट आ गया ए और बी का, आप मान लो कि ये इसके ऑपोजिट नहीं लग रहा, ठीक है। आप मान लो कि लेट्स से सी कुछ ऐसे करके, यानी कि प्लेन ऑफ द बोर्ड से बाहर को आ रहा है, कुछ एंगल से बाहर को आ रहा है। अच्छा, अगर ये कुछ एंगल से बाहर को आएगा, तो अब तुम देखो कि अगर ये बाहर को आ रहा है कुछ, ठीक है, ये वेक्टर कुछ बाहर को आ रहा है,
तो अगर ये वेक्टर कुछ बाहर को आ रहा है तो ए और बी का रिजल्टेंट तो इस बोर्ड के प्लेन में ही आएगा, ये तो सभी को क्लियर ही है। ठीक है, अब इस आर का और इस सी वेक्टर का जो सा रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे करके आएगा, तो वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर उसको जीरो आना है तो सी वेक्टर को इसी के प्लेन में ही लाई करना होगा। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी बच्चों को ये वाला नोट क्लियर है। डन। ठीक है, तो अगर थ्री वेक्टर्स whose resultant is 0 must be coplanar. After that, we are coming to the next part, that is if the vectors are non coplanar. Non coplanar मतलब अगर कुछ ये जैसे xy प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ये भी xy प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ये किसी और प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ग्रीन वाला मार्कर। ठीक है, ऐसी एक यहाँ पर एक और ब्लैक मार्कर है, ये कुछ और प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, ये कुछ 3D के अंदर ऐसे करके लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इफ द वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स whose रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 4। तो हमारे को मिनिमम 4 वेक्टर्स चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट 0 आए। ठीक है, तो इस चीज को भी हम आप विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ गया और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना। तो अगर लेट से ये देखो दो वेक्टर्स कोई भी एक प्लेन के अंदर आ गई, थर्ड वेक्टर है ना, तो अब फोर्थ वेक्टर मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में आ गया, एक प्लेन के आ इन दोनों के प्लेन के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब जो से थर्ड वेक्टर के साथ जो से इसका रिजल्टेंट है वो तो इसके प्लेन में नहीं है ना, तो ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो अब जो से इन दोनों का रिजल्टेंट आया कुछ इस डायरेक्शन में आया और इसका रिजल्टेंट कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा। अब उसको कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को एक और वेक्टर चाहिए ताकि अब इन तीनों के रिजल्टेंट को वो कैंसिल आउट कर दे। बात समझे ना बेटा सभी बच्चे। ठीक है, तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ 4 वेक्टर्स चाहिए अगर वो नॉन कोप्लेनर है, यानी कि अगर वो एक ही प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहे, ताकि उनका रिजल्टेंट कितना आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, तो इस नोट को भी सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को भी डाउट आ रहा है दे कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो इस चीज को सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एवरीवन ऑफ यू, ठीक है, हम 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एडिशन की। सबसे पहले वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। बेटा कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूं, उसका जो रिजल्ट आएगा या उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा और या जो रिजल्टेंट का एंगल आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू अगर मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूं। ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक कि अगर मैं स्केलर एडिशन की बात करूं, अगर सर मैं 2 + 3 करूं, चाहे मैं 3 + 2 करूं, तो 2 + 3 का भी रिजल्ट 5 आता है और 3 + 2 का भी रिजल्ट 5 आता है। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। तो यानी कि चाहे ए वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूं या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूं, उसका रिजल्टेंट आर वेक्टर ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड commutative property of vector addition. Now we are coming to the third property, that is vector addition is associative. ठीक है, अब associative का क्या मतलब हुआ कि अब देखो अगर मैं 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ए बी और सी वेक्टर को मेरे को ऐड करना है। ठीक है, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन के अंदर आपको बोला था कि पहले मैं 2-2 वेक्टर्स को करके ऐड करता हूं, राइट। अब इसमें वो ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है? देखो यहां पर ब्रैकेट ए और बी के ऊपर लगी हुई है, यहां पर ब्रैकेट बी और सी के ऊपर लगी हुई है। इसका क्या मतलब है? यहां पर ब्रैकेट का क्या मतलब है? यहां पर पहले मैं ए और बी को ऐड करूंगा, ए और बी का रिजल्ट निकालूंगा। ठीक है, और जो ए और बी का रिजल्ट आएगा फिर उसको मैं सी में ऐड करूंगा। ठीक है, और हमारे पास नेट एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं पहले बी और सी को ऐड कर रहा हूं, रेदर देन ए और बी को ऐड करने के मैं बी और सी को पहले ऐड कर रहा हूं और उसका रिजल्ट निकाल रहा हूं, और फिर जो बी और सी का रिजल्ट आएगा उसको मैं ए के अंदर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका भी हम प्रूफ भी देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक ए वेक्टर है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज सी वेक्टर। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो सा भैया इसका रिजल्ट है पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं, ए और बी का रिजल्ट निकालता हूं। तो अब ए और बी का बेटा रिजल्ट क्या आया? तो बेटा ए और बी का रिजल्टेंट क्या आया? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का। ठीक है, लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R1। ठीक है,
तो ये R1 वेक्टर आया। तो अब A और B को ऐड करके R1 आ गया, ठीक है। अब ये हेड टू टेल ज्वाइन है R1 और C। अब R1 और C का रिजल्ट क्या आएगा, R1 और C का रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज इसके टेल से स्टार्ट होके दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, लेट्स से R डैश। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R डैश, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि पहले मैंने A और B को ऐड किया, A और B को ऐड करके इसको अब भूल जाओ, अब ये हेड टू टेल ज्वाइन है, अब ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग ये इसका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली को क्या कहते हैं कि अगर आप पहले B और C को ऐड कर देते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि अगर मैं अब A और B को ऐड करने की बजाय अब मैं पहले B और C को ऐड करूं, ठीक है, A B और C है, B और C को ऐड करता हूं, ये टेल टू हेड B है और ये टेल टू हेड C है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया R2। देखो B और C का रिजल्टेंट क्या आ गया, R2 आ गया, ठीक है। अब ये R2 है और ये A है, अब R2 और AB कैसे ज्वाइंट है, ये A टेल टू हेड ये A है और ये टेल टू हेड R2 है, और R2 रिजल्टेंट किसका है, B और C का। अब अगर आप A और R2 का रिजल्टेंट निकालोगे तो ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग R क्या आएगा, ये R1 डैश इसका रिजल्टेंट आएगा। तो अब जैसे मर्जी कर लो, रिजल्टेंट R1 डैश ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इस चीज को सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद जो हम लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लैम्डा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और यहां पर A वेक्टर और B वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो अब वो ये बोल रहा है यहां पर अगर आपके पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लैम्डा से, चाहे आप ऐसे करो कि आप A वेक्टर को और B वेक्टर को ऐड कर दो, ठीक है, फिर जो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा उसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा नेट वेक्टर जो आएगा, देखो ठीक है ना, आपको पता है ना सभी को कि अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। ये हमने पहले डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, ठीक है। तो आपके पास एक रिजल्टेंट नेट वेक्टर आएगा, तो यहां पर जो नेट वेक्टर आएगा, जो यहां पर नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम कि अगर मैं पहले ही A वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक वेक्टर बन जाएगा लैम्डा A वेक्टर, ठीक है, एक लैम्डा B वेक्टर बन जाएगा। अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम लाइक दैट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये चीज भी वेक्टर एडिशन के ऊपर होल्ड ट्रू करती है, तो यानी कि अब मेरे को एक चीज पता चल गई, ये कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, दैट इज वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव एंड वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसका क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की जब हम प्रॉपर्टीज करेंगे तब ये जरूरी नहीं है कि हर मल्टीप्लिकेशन को कॉम्यूटेटिव हो या एसोसिएटिव हो, ठीक है। तो अभी यहां पर वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज की हैं, तो इस चीज को बेटा आप सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी बेटा, तो अभी बेटा हम जो से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सबट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी बच्चे को ध्यान से समझिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। देखो बेटा, इससे पहले हमने किया था वेक्टर एडिशन, राइट। तो वेक्टर एडिशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, लेट्स से मैं जो सा रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहा था, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैं निकाल रहा था, वी आर डूइंग दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर हम कर रहे थे, ठीक है। अब बेटा सभी बच्चे एक बात ध्यान से सुनिए, वेक्टर सबट्रैक्शन इज नथिंग बट वेक्टर, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन ओनली, ठीक है। कैसे, अब मेरे को क्या करना है, लेट्स से R1 वेक्टर मैं निकाल रहा था, लेट्स से R1 और R2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। R1 वेक्टर मैं कैसे निकाल रहा था, R1 वेक्टर इज दैट इज A वेक्टर और B वेक्टर का एडिशन। और अगर आप बेटा यहां पर A वेक्टर और B वेक्टर का एडिशन करेंगे आप, तो आपके पास A वेक्टर और B वेक्टर का एडिशन कैसे आ जाएगा, मैंने आपको बोला कि यहां पर ये टेल टू टेल ज्वाइन है, तो यहां पर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये B के पैरेलल बना दिया हमने यहां पर A के हेड से, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, तो यहां पर बेटा जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर करके ऐड करके, तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर R1, ठीक है, दिस इज योर R1 वेक्टर, ठीक है। इसका ये डायरेक्शन है और ये एंगल इसका अल्फा है। आई थिंक ये आपको क्लियर है। बट अब हमारे को यहां पर A वेक्टर प्लस B वेक्टर नहीं करना, बेसिकली मेरे को क्या करना है, दैट इज मेरे को एक R2 वेक्टर निकालना है which will be equals to A वेक्टर माइनस B वेक्टर, यानी कि मैंने अब A वेक्टर को B वेक्टर से में से A माइनस B वेक्टर करना सीखना है मेरे को, ठीक है। अब मेरा ये इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज मैं सीख चुका हूं और इस पर्टिकुलर चीज को मेरे को सीखना है,
राइट, डन। अब बेटा मैंने आपको बोला वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इस चीज को सभी बच्चे ध्यान से देखिए कि बेसिकली बेटा R2 वेक्टर किसके इक्वल है। क्या मैं ये कह सकता हूं इट इज इक्वल टू सर ए वेक्टर, ठीक है। ये मैं मैग्नीट्यूड नहीं लगा रहा हूं, बेसिकली ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। दैट इज R2 वेक्टर इज नथिंग बट प्लस, ठीक है, दैट इज ऑफ माइनस बी वेक्टर, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि दैट इज प्लस माइनस इज माइनस, तो अगर मैं ब्रैकेट को खोलूंगा दिस इज माइनस बी, दिस इज नथिंग बट दिस थिंग, ठीक है। और अगर बेटा आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो यहां पर बेटा R2 वेक्टर किसके इक्वल आ गया, दैट इज सर ए वेक्टर। ये मैं मैग्नीट्यूड नहीं डाल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं ब्रैकेट डाल रहा हूं, ठीक है, प्लस, ठीक है, दैट इज देखो अब ये माइनस बी वेक्टर है। माइनस बी वेक्टर क्या है, बेसिकली -1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बी वेक्टर से। बात समझ रहे हो ना बेटा। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट -1, ठीक है, एक स्केलर नंबर है, ठीक है। मैंने क्या किया, बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको ये माइनस बी वेक्टर बन गया और माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर बेटा मैं लेट बोल देता हूं, लेट, ठीक है। अच्छा अब आप सभी को पता है कि अगर मैं एक वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, आप देखेंगे कि इफ आई मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ नंबर -1 तो क्या फर्क आएगा, उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बस नेगेटिव से क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को। तो मैं लेट्स बोल देता हूं, लेट्स से सर माइनस बी वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर दैट इज सी वेक्टर। तो मैं माइनस बी वेक्टर को सी वेक्टर बोल देता हूं। तो बेसिकली मेरे पास R2 वेक्टर किसके इक्वल आ गया, सर R2 वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर के इक्वल है। तो बेसिकली R2 वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो मैंने बोला था ना, तो सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, इट इज ओनली एंड ओनली एडिशन, राइट। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है। तो अब बेसिकली हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये आपके पास एक ए वेक्टर था और एक ये बी वेक्टर था। मैंने आपको बोला कि इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अब आप क्या कीजिए, ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो आप सभी को पता है कि कौन सा मेरे पास माइनस बी वेक्टर है। तो कभी भी मैं किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहेगा बट उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर कौन सा मेरे पास माइनस बी वेक्टर है वो नथिंग बट ये है माइनस बी वेक्टर, दिस इज सर माइनस बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर है दिस इज माइनस बी वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर को मैंने क्या बोला, इट इज नथिंग बट सी वेक्टर, ठीक है। तो अब मेरे को कुछ भी नहीं करना, अब मेरे को ए वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करना है। और आप वेरी क्लियरली देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी कि सर अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी, या मैं कैसे बोल दूं, ए और सी के बीच में एंगल कितना आ जाएगा। अब आपके पास ए और सी के बीच में जो सा एंगल आ जाएगा दैट इज नथिंग बट टोटल इज 180। तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा दैट इज 180 माइनस थीटा। ये आप सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बेटा अगर आपके पास ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा डिग्री है तो ए और सी वेक्टर यानी कि ए माइनस बी वेक्टर, ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये आप सभी बच्चों को लर्न करना है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल इज थीटा, ठीक है, यानी कि एंगल इज थीटा, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, या मैं क्या बोल सकता हूं, और ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा दैट इज सर एंगल इज दैट इज 180 माइनस थीटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके यहां पर बल्ब भी बना देता हूं।
राइट। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सिर्फ मेरे को अगर मैं a माइनस बी वेक्टर कर रहा हूं दैट इज R2 वेक्टर, इट इज नथिंग बट a वेक्टर प्लस c वेक्टर। आप सभी को क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब बेटा आपको पता है कि भैया अगर आप a वेक्टर और c वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास R2 वेक्टर आ रहा है, तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, a प्लस सी कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, दैट इज a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा सॉरी, इसको मैं a नहीं बोलता, c बोल देता हूं, ठीक है, अभी के लिए c बोल देता हूं, ठीक है, तो a और दिस इज c वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ, अब आप समझिए आपको a और c के बीच में एंगल चाहिए, और a और c के बीच में एंगल कितना है, a और c के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो यहां पर मैं एंगल की वैल्यू कितनी लिख दूंगा, दैट इज 180 माइनस ऑफ थीटा। अब बेटा सभी बच्चों को एक बात पता है, दैट इज सर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको अगर मैं सी वेक्टर लिख रहा हूं, दैट इज माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है ना। तो फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, इन दोनों में ये फर्क है बेटा कि दैट इज बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जो मैग्नीट्यूड b का है वही मैग्नीट्यूड माइनस b का है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ। तो आई कैन वेरी क्लियरली से दैट कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ, आई नो दैट सर मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, क्योंकि वो -1 से मल्टीप्लाई है ना, यानी कि b वेक्टर और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब मैं c वेक्टर यहां पर लिखने की बजाय मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, दैट इज b लिख दूंगा। तो अगर बेटा मैं यहां पर b लिखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज r2 विल बी इक्वल्स टू, r2 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू दैट इज a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2a b cos ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, और सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। तो अगर आप सभी बच्चों टी रेशियोज आपने की हुई हैं तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा, तो अब आप सभी समझ सकते हैं 180 माइनस थीटा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 180 है तो cos नहीं रहेगा, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ cos थीटा। I know that cos of 180 minus theta is minus cos theta। तो बेटा R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, दैट इज सर R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अच्छा ये माइनस cos थीटा था तो मैं यहां पर माइनस पुट कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये माइनस आ जाएगा और यहां पर ये cos ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि अगर आपको a माइनस बी वेक्टर करना है तो ये तो आपको रिजल्टेंट R2 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया आपके पास, इस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एंड सिमिलरली बेटा अगर आपको tan अल्फा लिखना है, ठीक है, तो बेटा बेसिकली इसका एंगल और c का रिजल्टेंट कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट a और c का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो यहां पर मैं देखो, यहां पर मैं पॉलीगन को कंप्लीट कर देता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे या पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो a और माइनस b का जो सा रिजल्टेंट होगा, this will be this, sorry,
जिसको मेरे को यहाँ पर डायगोनली यहाँ पर लेकर आना है, सॉरी, तो है, तो दिस विल बी माय R2 वेक्टर। तो अब सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखें कि R2 वेक्टर क्या है, दैट इज A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर R1 वेक्टर क्या है, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अच्छा, यहां पर बेटा अगर मैं अल्फा की वैल्यू बोलता था, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास, अच्छा यहां पर बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखें, रिजल्टेंट वेक्टर का R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता था, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दैट इज A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यानी कि अगर आपको A प्लस B के वेक्टर मैग्नीट्यूड का निकालना है, A प्लस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो R1 का ये आएगा यानी कि प्लस आएगा, और अगर आपको A माइनस B वेक्टर निकालना है यानी कि R2 वेक्टर निकालना है, तो आपके पास कुछ फर्क नहीं आएगा इस फॉर्मूले के अंदर, सिर्फ यहां पर एक माइनस का साइन आता है, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने इस एंगल को क्या डिनोट किया था, इस एंगल को डिनोट किया था अल्फा, ठीक है। तो अब सभी बच्चों को एक बात पता है कि सर tan अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आई थी आपके पास, तो आप सभी बच्चे देखिए tan अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई थी, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड ही है b के, है ना, और a के, ये सभी को पता है, ठीक है। तो अब बेटा अगर मैं यहां पर इस एंगल को बीटा बोल देता हूं, ठीक है ना, तो बेसिकली a और माइनस b के एंगल बीच में यानी कि a वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर का जो सा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दिस इज माय a वेक्टर, है ना। तो a वेक्टर और R2 के बीच में जो सा एंगल है, इस एंगल को मैं बोल देता हूं बीटा। तो अब बेटा मेरे पास tan बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ अब मैं यहां पर थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा पुट कर दूंगा, दैट इज b साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब मेरे को कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा के इक्वल पता है, और बेटा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये भी आप टी रेशियो से निकाल सकते हो। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज पॉजिटिव है और साइन साइन में रहेगा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी सभी बच्चे याद रखेंगे, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा एंड sin ऑफ 180 माइनस थीटा इज sin थीटा। ये आपके पास टी रेशियो से आएगा। तो यहां से बेटा अगर आप tan बीटा की वैल्यू को निकालोगे तो tan बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज sin ऑफ 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो दैट इज b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय दैट इज a वेक्टर, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस का साइन आ जाएगा, दैट इज cos ऑफ, सॉरी, दैट इज b cos थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। तो अब बेटा मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, जो आपको एंड रिजल्ट्स याद करने हैं, दैट इज अगर आप बेटा R2 वेक्टर आ रहा है आपके पास A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सिर्फ फर्क क्या है एडिशन वाले फॉर्मूले में, यानी कि यहां पर एक नेगेटिव का साइन आ गया, डन। एंड सिमिलरली डायरेक्शन निकालने के लिए जब मैं A प्लस B करता था तो ये फॉर्मूला होता था। अब डायरेक्शन निकालने, R2 वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए यानी कि A वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है वो मैंने बीटा लेट कर लिया, और यहां पर tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज b sin थीटा, ठीक है, अपॉन a माइनस b ऑफ cos थीटा। अब एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अभी मैं ये जहां पर जो सा ये एंगल ले रहा हूं थीटा, वो a और b के बीच में ले रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, a और b के बीच में थीटा एंगल ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर जो भी a और c वेक्टर है या a और माइनस b वेक्टर है उसके बीच में जो सा 180 माइनस थीटा है वो मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर चुका हूं, ठीक है ना। तो आपके पास जो थीटा एंगल है वो a और b के बीच में ही है, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। a और b के बीच में एंगल कितना है थीटा, और a और c के बीच में कितना है 180 माइनस थीटा।
ठीक है। तो अब मैंने ये जो सा फॉर्मूला निकालना है R2 और R2 का मैग्नीट्यूड और tan बीटा का जो सा निकाला है, ये मैंने ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और थीटा के बीच में रिलेशन निकाला है। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, राइट। तो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को में, अच्छा अब आप समझ सकते हो कि एडिशन के फॉर्मूले के अंदर यहां पर प्लस आता था और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले के अंदर यहां पर माइनस आता है, एक ये डिफरेंस है। और अगर मैं एंगल की बात करूं, एडिशन के फॉर्मूले के अंदर यहां पर प्लस बी cos थीटा आता था, यहां पर माइनस बी cos थीटा आता है, सिर्फ ये फर्क, ठीक है। तो ये दो कौन से फॉर्मूले हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के किए हैं, इसको बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देन अब अगर आपको क्वेश्चन आता है, आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हो, चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका मन करता है कि नहीं सर मैं क्या करता हूं कि सर मैं 180 माइनस थीटा की वैल्यू को निकाल लूंगा और मैं वेक्टर एडिशन की तरह सॉल्व करना चाहता हूं, तो चाहे आप a प्लस बी ये वाले फॉर्मूले को अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस एंगल को 180 माइनस थीटा पुट कर लीजिए। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज बेटा हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फाइंड आउट किए हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन ओनली, ठीक है, क्लियर। तो बेटा इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ए और बी के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है, ये R1 ए और बी के एडिशन का रिजल्ट है, ठीक है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बेटा नोट डाउन कीजिए। जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल ए और बी के बीच में है, ये कंप्लीट एंगल थीटा है। ए और R1 के बीच में एंगल कौन सा है, अल्फा, वेरी क्लियर। अब ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, दैट इज 180 माइनस थीटा। ये कंप्लीट एंगल 180 माइनस थीटा है ना, ये जो 180 माइनस थीटा एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल। और बीटा एंगल कौन सा है, ए और R2 के बीच में एंगल है, क्लियर बेटा। तो इस सभी फॉर्मूलास को अच्छे से बेटा नोट डाउन कर लीजिए, टी रेशियोज और ये सब कुछ, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए वेक्टर एडिशन के, इसके बाद बेटा हमने 5 क्वेश्चन वेक्टर एडिशन के किए, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन को देखा और उसके बाद हमने कुछ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को देखा, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन बेटा यू रिवाइज दिस लेक्चर वेरी थॉरोली, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ये मत देखिए कि हमने लेक्चर को लगाया या नहीं लगाया। जितने लेक्चर लगा लिए, क्या तुमने उसका क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया? अगर आपने उसका क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। ये मत देखो कि हाँ भी हमारे कितने लेक्चर, हर रोज हमने एक लेक्चर नहीं लगा रहे, नहीं, उसके ऊपर नहीं जाना आपको जाना है कि हाँ भी जितने लेक्चर्स लगा लिए, क्या मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया? क्योंकि अगर आपने उसका क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना बेटा, डन। तो बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप लगाओ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आई एम टेकिंग एट वेरी इजीली, मैं लेक्चर्स को बहुत इजीली लेकर जा रहा हूं, बहुत हाई लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे हम लेक्चर्स को, राइट। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट विशेस एंड बी हैप्पी, ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, स्लीप हेल्दी, 3 चीजों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, तब पढ़ाई होगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, गॉड ब्लेस यू।